We are thankful to God for this time together to worship God. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि एक साथ आकर हम उसकी आराधना करें। God is faithful. परमेश्वर विश्वसनीय है। We serve a God who keeps all His promises. और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो अपने हर एक वादे को पूरा करता है। So we thank God for this day. Wherever we are, we can worship God, listen to His voice, and make Him happy. तो हम जहाँ कहीं पर भी हम धन्यवाद देते हैं कि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं और हम उसकी आराधना कर सकते हैं। Let's welcome Holy Spirit in our midst. आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच बुलाएंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, this morning we thank you for your faithfulness in our lives. धन्यवाद परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका विश्वासपन हमारे जीवन में You are faithful, faithful to all generations. अब हर एक पीढ़ी के लिए विश्वसनीय है। This morning we give glory, honor, and praise to you. इस सुबह हम आपको सारा आदर महिमा गौरव देते हैं। Thank you for your faithfulness to keeping us alive. धन्यवाद प्रभु कि आप विश्वसनीय हैं कि आपने हमें जीवित रखा। You have blessed our bread and water. आपने हमारे अन्न पानी को आशीषित किया। Lord, you have kept us alive so we can enjoy everything that we have in our life. और परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा है ताकि हर एक जो चीजें आपने दिए हैं हमारे जीवन में। This morning we humble ourselves, we surrender our lives in your mighty hand. इस सुबह अपने आप को नम्र करके आपके हाथों में हम सौंपते हैं। We give glory, honor, and praise to you. हम सारा आदर महिमा गौरव आपको You देते are हैं। creator, whole creation declares your glory. आप निर्माण करता है और अपने हर एक सृष्टि को निर्माण When किया you look है। at creation, they declare your greatness and mighty works. और जब हम आपकी निर्मित देखते हैं तो वो आपकी महानता गाती है। So we give glory, honor, and praise to you. तो हम आपको आदर महिमा गौरव देते We हैं। lift up your name higher, higher. हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। You have blessed our bread and water. आपने हमारे अन्न पानी को आशीषित You किया have है। blessed our coming and going. आपने हमारा आना जाना आशीषित You किया have है। kept everyone in the family alive so we can enjoy fellowship. आपने हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को जीवित रखा है ताकि आपकी सहभागिता का आनंद हम As we walk in divine healing, divine provision, divine protection, you have faithfully fulfilled your promises in our lives. और जैसे आपकी देवी चंगाई, देवी पुरोठा, देवी सुरक्षा में हम चलते हैं तो आपका विश्वासपन आपने पूरा किया है। Holy Spirit, lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। Let your presence be upon us as we worship you in spirit and truth. और जैसे हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। Let this praise and worship be acceptable in thy sight. ये स्तुति आराधना आपकी नजरों में ग्रहणीय हो। We are thankful to you for your faithfulness in our lives. आपका जो विश्वासपन हमारे जीवन में उसके लिए हम काफी Father God, we pray for those who are sick and we come among us. Touch them and heal them. और परमेश्वर जो हमारे बीच बीमार और कमजोर है आप उन्हें छू कर उन्हें चंगा कीजिए। Those are confused, they remove their confusion and grant them peace. और जो उलझन में उनकी उलझन दूर करके परमेश्वर उन्हें आप शांति दीजिए। Restore broken जो lives. टूटे हुए जीवन है उन्हें फिर से जोड़िए। Unite every family to give glory, honor, praise to you. और हर एक परिवार को एक साथ लाइए ताकि वो मिलकर आपको गौरव दे पाए। Lord, as we are worshiping you, let your presence come upon every one of us. और जैसे हम आपकी आराधना कर रहे हैं तो आपकी उपस्थिति आपका आत्मा हर एक व्यक्ति पर आ जाए। Lord, we pray for Christian Faith Center family. Lord, we thank you for every member that you have kept us alive. परमेश्वर क्रिश्चियन फेथ सेंटर हमारा जो परिवार है हम धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के व्यक्ति को आपने जीवित रखा है। Also, Lord, we thank you for our Christian Faith Center, Koparkarna Church. We thank you as we celebrate your faithfulness. 15 years of God's faithfulness in our lives. और हमारा क्रिश्चियन फेथ सेंटर कोपरखैरणे ब्रांच जो चर्च है परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके विश्वासपन के लिए कि 15 सालों से आप उनकी तरफ विश्वसनीय हैं। Lord, we are celebrating your faithfulness in our lives. और आपका विश्वासपन का उत्सव हम हमारे जीवन में मनाते हैं। You have a greater future for every one of us. हर एक व्यक्ति के लिए आपका एक उज्जवल भविष्य This है। morning we bring our nation, we bring the whole world before you, Lord, even though people go through crisis and problems in our world. और परमेश्वर इस समय हमारे इस राष्ट्र को हमारे इस देश को आपके सामने लाते हैं कि महामारी के बीच वो चल भी रहे फिर भी आपके सामने हम सबको लाते हैं। Lord, each one of us will dwell in your place. और हर एक व्यक्ति आपके उस स्थान में हम निवास करते हैं। We reveal ourselves, we come before you under the precious blood of Jesus. और आपके सामने खुद को हम लाकर रखते हैं और आपके लहू के नीचे खुद को ढकते हैं। Under the blood of Jesus we have protection and deliverance. और यीशु मसीह के लहू के नीचे हमें सुरक्षा है और हमें मुक्ति है। Lord, also we pray for our nation, our
people in authority. और परमेश्वर हमारे राष्ट्र के जो अधिकारी लोग हैं परमेश्वर उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। Our president, our prime minister, our government officials and our state chief minister. और हमारे परमेश्वर जो प्रधानमंत्री है, हमारे हर एक प्रेसिडेंट, हमारे मंत्री और जो हमारे इस देश के मुख्यमंत्री है, हर एक व्यक्ति को आपके सामने लाते हैं। Lord, we pray for our prime minister Narendra Modi. और हमारे पंतप्रधान परमेश्वर नरेंद्र मोदी जी को आपके सामने लाते Grant हैं। him good health and also wisdom to make right decision in a times of crisis. और उन्हें अच्छी सेहत देकर परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि सही निर्णय वो ले पाए। We ask your blessing upon our chief minister Mr. Uddhav Ji Thackeray. और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, let your wisdom and your protection be upon him and upon his family. और उन पे और उनके परिवार पे आपकी ज्ञान बुद्धि का पुरोटा हो। That he will be able to make a right decision for peace and also prosperity in our state. ताकि वो हमारे इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए सही निर्णय ले पाए जो शांति लेकर आए। We pray for people in medical field, police force and all our municipal administration. और हमारे जो मेडिकल सहकर्मी है, जो पुलिस अधिकारी है परमेश्वर और जो सारी अधिकारी व्यक्ति है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Lord, bind us together to give glory and honor and praise to you. हम सभी को एक साथ आप बांध दीजिए ताकि हम आपको मान महिमा गौरव Holy दे Spirit, पाएं। lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप ही हमारा मार्गदर्शन In करें। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Let's continue to worship God. Pastor Smita will lead us in singing and worship. Let's worship God together. तो हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। पासवान स्मिता जो है वो हमें आराधना में लेकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। This morning as we going to praise and worship, let's invite Jesus into our hearts. और इस सुबह जैसे हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं तो हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में, हमारे दिल में बुलाएंगे। Because He is an awesome God. क्योंकि वो एक अद्भुत और महान प्रभु है He is to be praised. और उनकी आराधना करनी चाहिए। And therefore this morning as we sing this song, let us call unto Him. और इस सुबह जैसे हम ये गीत गाते हैं तो हम उसे पुकारेंगे। We know that God is good. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर भला है And therefore He has given us the authority over everything. और इसीलिए उन्होंने हर एक चीज पे हमें वो अधिकार दिया And है। therefore this morning we need to resist the devil. और इसलिए इस सुबह हमें उस शैतान का सामना करके उसे भगाना है। Because he has already been conquered. क्योंकि उसके ऊपर पहले ही विजय प्राप्त किया गया है। And therefore we need to have His word and we need to pray all the time. इसलिए परमेश्वर का वचन थाम कर हमें सदा सर्वदा प्रार्थना करना है। And therefore let us sing शैतान का सामना करो भागेगा. इसलिए आइए हम ये गीत गाएंगे, शैतान का सामना करो भागेगा। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु का नाम लो भागेगा, यीशु का नाम लो भागेगा, यीशु का नाम लो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान का सामना
Hallelujah. Jesus has conquered sin and death. और यीशु मसीह ने मृत्यु और पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया है। And when Jesus came into our lives, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, our life has been changed. तो हमारा जीवन बदल गया है। And therefore we can experience this new life in us. और इसलिए इस नए जीवन का अनुभव हम ले सकते हैं। He is there, He is the way, the truth and life. वही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। And therefore this morning as we sing the song, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। इसलिए हम सुबह ये गीत गाएंगे कि जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। Amen. जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है नरिया नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। बाट में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। बाट में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहाकर पाप हमारा, लहू बहाकर पाप हमारा, प्यारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। Hallelujah. हालेलुया। God is so good, और परमेश्वर कितना भला है, and therefore we need to flow in His love. और इसलिए उसके प्यार में हमें बहते रहना है। He is the ocean of love, और वो उस प्यार का सागर है, and nobody can compete His love और कोई भी उसके प्यार की तुलना नहीं कर because सकता, it's above the heavens. क्योंकि वो उस स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंचा है, It's deeper than that sea, उस समुद्र से भी ज्यादा नीचा and वो गहरा nobody है। can measure His love. और उसके प्यार को कोई भी उसकी गहराई नहीं नाप सकता। In spite of being God, और वो परमेश्वर होने के बजाय He became man, वो इंसान बना, and He came on this earth, और इस पृथ्वी पर वो आया, and He gave His love for everybody. और उसने अपना प्यार हर एक व्यक्ति के लिए दिया। And therefore, as we go into praise, और इसलिए worship, जैसे हम उस स्तुति में हम चलते हैं आगे, let us sing this song with the depth of our hearts. इसलिए अपने दिल की गहराई से हम इस गीत को गाएंगे। This morning, tell Him how good and how
loving God you are. और इस सुबह उसे बताएंगे कि वो कितना अच्छा, कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। Let us sing this song and glorify His name. आइए हम ये गीत गाकर उसके नाम को गौरव देंगे। तू प्यार का सागर है। हम ये गीत गाएंगे, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. We praise and we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Father, yes. Oh, glory, 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 glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship, worship, worship your God. Oh, Rabashandaraba. Oh, Rabasikaraba, Rabashikeri Alaba. Oh,
Rabadi Korobo Sakandara Barabaraba. Jesus, 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 Jesus. We lift your name, we give you glory, honor, and praise. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. For thou art good, oh God, for thou art so gracious, God. Oh, Rabba, 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 Shanda, Rabba, Rabba. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, the King of Kings and the Lord of Lords. We worship, worship, worship you, oh God. For thou art so great and so mighty, God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Father God, this morning we come into your presence, oh God. परमेश्वर सुबह तेरी उपस्थिति के बीच हम आते हैं We thank you, Lord, for your presence goes before us, oh God. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की आपकी उपस्थिति हमारे आगे चलती है Have control over our lives this morning, oh God. हमारे जीवन का नियंत्रण कीजिए प्रभु Have control over the situations that is in today in the world, oh God. और परमेश्वर इस समय जो इस दुनिया में जो परिस्थिति है उसका नियंत्रण आप करें Lord, we thank you, Lord, for your presence is strong, oh God. हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति इतनी बलवान है प्रभु Thank you, Lord, for you are greater than anything in this world, oh God. और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा महान आप है प्रभु And therefore, Lord, we depend upon you for everything, oh God. इसलिए हर एक चीज के लिए हम आपके ऊपर निर्भर रहते हैं प्रभु Lord, you are the way that we have to walk in, oh God. और परमेश्वर तू ही वो मार्ग है जिसके ऊपर हमें चलना है Lord, you are the truth that has to be told, oh God. और आप ही वो सत्य है जो हमें लोगों को बताना है And you are the life that we have to live in, oh God. और आप ही वो जीवन है जिसके अंदर हमें जीना है And therefore this morning, Lord, we surrender our lives into your precious hands, oh God. इसलिए इस सुबह आपके उस मूल्यवान हाथों में अपना जीवन हम समर्पित करते हैं Take charge of everything, oh Master. आप ही हर एक चीज का नियंत्रण कीजिए प्रभु Bless our people, oh Lord, as they are listening, Lord, and praising and worshiping and listening to you, oh God. और हम आपके लोगों को आप आशीषित कीजिए जैसे इस समय वो आपको सुन रहे हैं परमेश्वर इस सारी बातों को सुनकर आपकी आराधना कर रहे हैं Lord, this morning, Lord, I give your servant into your precious hands, oh God. इस सुबह आपके सेवक को आपके मूल्यवान हाथों में हम सौंपते हैं Let your anointing flow through his life, oh God. और उनके जीवन के द्वारा आपका अभिषेक बहता रहे And प्रभु let his life be a blessing to each and every one of us this morning, oh God. और इसलिए इस सुबह परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए उनका जीवन आशीषित हो जाए Lord, let the words go deep down into our hearts this morning, oh Lord. और आपका ये वचन हमारे दिल की गहराई तक पहुँचे प्रभु And not our will, oh God, but let your will be done. और हमारी इच्छा नहीं प्रभु तो आप ही की इच्छा पूरी हो जाए In the mighty name of Jesus we ask. और आपके बहुमूल्य नाम में हम मांगते हैं प्रभु Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. God is good. और परमेश्वर भला है God is good all the time. परमेश्वर सदा सर्वदा भला है And He is unchanging Jesus. और वो कभी ना बदलने वाला यीशु Jesus never fails. और यीशु कभी हारता नहीं And I want to encourage you this morning that He has a good plan for all of you. और इसलिए इस सुबह आपको मैं उत्तेजित करना चाहता हूँ कि आपके हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना He has है not forgotten you. वो आपको भूले नहीं है He has not forsaken you. और आपको उसने त्याग नहीं दिया Neither He has rejected you. और आपका धिक्कार भी नहीं किया Instead He says, come unto me. उसके बजाय वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ, All those are heavy burden. जो भी बोझ से दबे हुए हैं Come unto me आप मेरे पास आओ and I will give you rest. और मैं तुम्हें वहाँ पर शांति He is a दूंगा। faithful God. वो एक विश्वसनीय प्रभु He is है always very near to each one of us. और वो हमें से हर एक व्यक्ति के करीब है We must draw nearer to Him. और इसलिए हमें भी उसके और ज्यादा करीब जाना As we draw closer to God, God will be more closer to us. और जैसे हम परमेश्वर के अधिक निकट जाते हैं तो वो हमारे और He ज्यादा is करीब आता है। interested in your life. आपके जीवन में उसे रुचि है Not only your spiritual life, but He wants to provide all your physical, your spiritual, your material needs. और केवल आत्मिक नहीं परंतु आपके दैहिक जीवन आपकी जो आत्मिक जरूरतें हैं उन्हीं को भी वो पूरा करना चाहता I है always encourage people of God, let's walk in divine healing. इसलिए मैं आप हर व्यक्ति को उत्तेजित करता हूँ कि उसके दैवी चंगाई में हम चले Claim promises of God and cling on to the promises of God. और परमेश्वर के अभिवचन को कबूल करे उनको थामे रहे He has already provided healing so we can walk in divine healing. और उन्होंने पहले ही आपको चंगाई दी है ताकि उस चंगाई में हम चल पाए
We है। must command our body to walk in healing. तो अपने शरीर को हमें ये उद्देश्य देना है, आदेश देना है कि वो चंगाई में You must चले। tell yourself, my heart is strong. आपको अपने आप से कहना है कि मेरा दिल मजबूत है। You must tell, my stomach is blessed. आपको ये कहना है कि मेरा पेट आशीषित है I'm highly favored. और मुझ पे अनुग्रह किया गया है I'm greatly blessed. और मैं महान रीति से आशीषित हूँ। And so we can walk in every day in blessings of God. इसलिए हर एक दिन परमेश्वर की आशीषों में हम चल सकते हैं। And so we are thankful to God for His faithfulness. He keeps all His promises and fulfills those promises in our lives. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को उसके हर एक वादे के लिए क्योंकि वो हमें जो वादे करते हैं वो पूरी भी करते हैं। So we are thankful to God that He is still working in our lives. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज भी वो हमारे जीवन पे कार्य कर रहे हैं। Saturday on 16th we celebrated God's faithfulness for our branch church in Koparkhana, Navi Mumbai. और 16 मई को शनिवार हमारा जो कोपरखैरने में हमारा CFC का ब्रांच चर्च है उसमें 15 साल पूरे किए हैं। As a Christian faith-centered family, we are thankful to God for His faithfulness upon His church. और क्रिश्चियन फेथ सेंटर परिवार होने के नाते परमेश्वर का जो विश्वासोपन हमारे कलीसिया पे है उसलिए उसे धन्यवाद देते He is हैं। the master, He is the owner of His church. और इस कलीसिया का वो मालक है, वही स्वामी है। Building is not the church. और जो इमारत होती है वो कलीसिया नहीं But होती। people of God, when they come together, they are a church of Jesus. परंतु परमेश्वर के लोग जब इकट्ठा होकर एक साथ आते हैं तो वो यीशु मसीह की कलीसिया है। 15 years ago, we started a branch church in Koparkhana, and we are thankful to God for every member and every family. और 15 साल पहले कोपरखैरने में हमने हमारा ब्रांच चर्च शाखा जो हमारी शुरू की और धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि हर एक परिवार जो वहाँ आते हैं। And even though we know God, we don't have a building, but still we are meeting and we are growing. और हमें पता है कि वहाँ पर हमारी खुद की इमारत नहीं है परंतु फिर भी हम इकट्ठा आकर वहाँ पर उसकी आराधना करते हैं। Our purpose to bring people of God together, to build them to become soldiers, a warrior for Christ. और हमारा ये उद्देश्य है कि लोगों को परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें एक साथ लाकर उन्हें वहाँ पर हम उनका निर्माण करें और वो परमेश्वर के योद्धा वहाँ पर होने Our वाले हैं। purpose we want to make people of God strong in the Lord. और हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोगों को उसके वचन में हमें मजबूत बनाना है Every believer become a warrior. और हर एक विश्वासु इंसान जो है वो एक योद्धा बनेगा। Every child of God will have testimony every day. और हर एक परमेश्वर के बच्चे के पास हर एक दिन एक गवाही होगी। I know for sure Jesus is with me. और मुझे पूरा यकीन है यीशु मेरे साथ है। Everyone will have a testimony. He walks with me. He talks with me. He goes with me wherever I go. और हर एक व्यक्ति की ये साक्ष्य होनी चाहिए कि वो मेरे साथ बात करता है, मेरे साथ चलता है, मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मेरे साथ So होता है। we thank God for His faithfulness upon Koparkhana branch. तो परमेश्वर का जो विश्वासोपन हमारा कोपरखैरने शाखा में हमारी शाखा चर्च में उसके लिए उसे धन्यवाद। Our branches in Maharashtra border and MP border. और हमारी जो चर्च की दूसरी शाखाएं हैं महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर पे। We pray for our assistant pastors who are faithfully working in God's vineyard. और हमारी जो असिस्टेंट पासवान है उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि परमेश्वर की इस ये जो योजना है उसमें वो काम कर रहे That हैं। each one of us working in God's field faithfully will bring souls in the kingdom of God. कि हर एक व्यक्ति अपने ओर से विश्वासी रूप से वहाँ पर कार्य कर रहा है कि उसके राज्य के लिए वो आत्म लाभ। Our purpose to bring souls added in the kingdom of God. और हमारा उद्देश्य है कि हम आत्म और लाएं कि परमेश्वर के राज्य में वो जोड़े जाएं। And so we are praying for every one of you. इसलिए हम हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। are praying for God's protection upon you in the time of crisis. और ये जो महामारी का समय है तब परमेश्वर का जो सुरक्षा है उसके लिए आपके जीवन पे काम We remember your faces. When you take your names and we pray for all families. और हम आपकी चेहरों को याद रखते हैं। जब हमारा आपका चेहरा हम याद रखते हैं तो आपके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Individually we are praying for you. और हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते That God will be with you all the time. हैं कि परमेश्वर सदा सर्वकाल आपके साथ रहे। Even though there are lack of provision, but God is providing. और शायद चीजों की वहाँ पर कमी हो परंतु परमेश्वर हर एक चीज को पूरा कर रहा He is है faithful to keep all His promises. और विश्वसनीय है कि अपने हर एक वादे को पूरा And करे। this morning, one more time, I
I'm here to encourage you from the Word of God. और इस सुबह फिर से एक बार मैं यहाँ पर हूँ ताकि आपको परमेश्वर के वचन से मैं उत्तेजन दूं। We as a Christian Faith Center, we are located in Chembur, and we are thankful to God for our city. Our city is God's plan. और हम क्रिश्चियन फेथ सेंटर हम चेंबूर में हमारी शाखा है। हम परमेश्वर के लोग होने के नाते यहाँ पर हम स्थानीय हैं कि उसके नाम को हम गौरव देते We हैं। thank God for our city of Mumbai. और हमारे मुंबई शहर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद Even though देते हैं। there are many coronavirus patients, but we believe God has already started healing. और शायद मुंबई में बहुत सारे कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, परंतु हमें यकीन है परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहे हैं। We as a church, we turn off from wicked ways, we repent and we cry unto God. और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे जो पाप है उनसे हम दूर हटकर हम वहाँ पर पश्चाताप कर रहे हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। And then God answers our prayer. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देते He हैं। says, I'm healing your land. और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी भूमि को आशीषित So कर we रहा are हूँ। thankful to God. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते God is हैं। faithful in keeping all His promises. और परमेश्वर विश्वसनीय है अपने हर एक वादे को पूरा करने के लिए। So we are thankful to God this time together as we are praying, studying Word of God and making ourselves stronger in the Lord. तो हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके वचन से सीख रहे हैं और परमेश्वर में और ज्यादा बलवान हो रहे So हैं। I'm sure what we are studying together and meditate upon Word of God, it has become a part and parcel of our life. तो मुझे यकीन है कि जो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं उस पे मनन कर रहे हैं तो वो हमारे जीवन का एक भाग बन रहा है। So we started a theme about educating your spirit, soul and body. तो हमने जो विषय शुरू किया है वो ये है कि अपने आत्मा को अपने मन को वहाँ पर हमें किस तरह से प्रशिक्षित करना है। Our spirit is our spiritual life. हमारा जो आत्मा है वो हमारा आत्मिक जीवन है। Then we have a soul. तो और एक हमारा जीव है। Then we have a body, that's outer life. और फिर हमारा ये जो शरीर है वो हमारा बाहरी जीवन है। And then we can educate our soul, our spirit and our body. तो हमारा आत्मा को, हमारी जान को और हमारे मन को हमें वहाँ पर प्रशिक्षित करना है। Education will always help us to progress. और शिक्षण जो है वो हमेशा हमारी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। Education will open our eyes to see dangers. और जो शिक्षण है वो हमारी आंखें खोलेगा ताकि हम उस खतरे को देख पाए। Education will help to solve problems. और शिक्षण जो है हमें मुश्किलों में से उसका सामना करने को सिखाएगा। Because Bible tells, because of ignorance my people are perishing. और परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि ज्ञान न होने की वजह से मेरे लोग वहाँ पर उनका नाश हो रहा है। So Bible tells us we must buy knowledge, we must be after knowledge. इसलिए शास्त्र हमें कहता है कि हमें उस ज्ञान बुद्धि के पीछे पीछे चलना है। And the word of God at one place says the fear of the Lord is the beginning of all knowledge. और एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय ही हर एक ज्ञान की शुरुआत है। And so we as a human beings, we can educate ourselves. और हम इंसान होने के नाते हम खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं। So never be uneducated. Let us educate our spirit, soul and body. इसलिए कभी भी अज्ञानी न रहे, परंतु हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे जीवन को हमें वहाँ पर प्रशिक्षित करना So है। we started studying about educating our spirit, and first we learn about meditation on the word of God. और जिस तरह से हमने हमारी आत्मा को प्रशिक्षित करना सीखा है तो हमने पहली चीज जो सीखी कि परमेश्वर के वचन पे हमें मनन करना है। Meditation is very important. मनन करना काफी ज्यादा जरूरी है। But Christian meditation is different than other worldly meditation. परंतु जो विश्वासी लोग जो है उनका मनन करना जो इस दुनिया में जो जैसे लोग मनन करते हैं उसमें काफी फर्क है। Worldly meditation tells you you can open yourselves for any other spirit. और जो इस दुनिया में लोग जिस तरह से मनन करते हैं उनका ये कहना होता है कि बाहरी जो आत्मे हैं उनकी तरफ आप अपने आप को खुला कर दीजिए। So you are opening yourself even to evil spirit that can destroy your life. तो आप अपने आप को अगर उस तरह से आप मनन करेंगे तो जो शैतानी जो आत्मे हैं उनकी तरफ भी आप अपने आप को खुला कर देते हैं। So in meditating word of God, you are opening yourself to the Spirit of God
concentrate on word of God, you are allowing Spirit of God to work on your life. तो जब परमेश्वर के वचन पे आप मनन करते हैं तो परमेश्वर के वचन की ओर अपने आप को आप खोल देते हैं, उनके वचन पे मनन करके उसकी आत्मा को आप अपने उस पे आप मनन करते हैं. And we study the benefit of studying and meditate upon word of God, we can be strong in the Lord. और हमने ये भी सीखा कि कैसे उसके वचन में जब हम मनन करते हैं तो उसका फायदा क्या है और उसके जो किस तरह से हम उसके वचन पे मनन कर सकते हैं वो हमने सीखा. Through word of God meditating, we become more courageous and be strong in the Lord. तो परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा हम ज्यादा ही वहाँ पर हमें धैर्य आ जाता है और उसके वचन में हम बलवान होते हैं. And that courage gives us to practice word of God in our life. और वही धैर्य जो है हमें वही मनन करना हमें धैर्य देता है कि उसके वचन को का सराव हमारे जीवन में हम So we start practicing word of God, practice till we become perfect. तो हम जब तक परिपूर्ण नहीं हो जाते तब तक हम उसके वचन पे मनन करते रहते हैं, उसका सराव करते रहते हैं. So in that we started studying about practice the word of God, and then we not only become a hearers of word of God, but we become a doers of word of God. और परमेश्वर के वचन का सराव करने के करते रहने से हमने ये सीखा कि केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसका वचन करने वाले भी हमें बनना है. So by practicing, we start experiencing word of God in our life. तो उसके वचन का सराव करने के द्वारा हम उसके वचन By practicing word of God, we start experiencing what is in the word of God. तो उसके वचन का सराव करने के द्वारा उसके वचन में क्या लिखा हुआ है उसका अनुभव लेना हम शुरू करते हैं. If I am sick, I say by His stripes I am healed, and then I can start experiencing I am already healed in my body. तो उसका वचन जब हम पढ़ते हैं कि उसको बैठे हुए कोड़ों के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, जब उसका सराव हम करते हैं तो हम अनुभव भी लेते हैं कि सच में हमें चंगाई मिलती I है. I start overcoming my body by experiencing the word of God in my life. और मेरे शरीर के ऊपर मैं विजय किस तरह से प्राप्त करता हूँ कि उसके वचन पे मनन करने के द्वारा और उसके वचन का सराव करने के द्वारा. If I have want in my life, I say my God shall supply all my need according to His riches in glory. अगर मेरे जीवन में कोई जरूरत है तो मैं ये वचन कबूल करता हूँ कि उसके मेरी हर एक जरूरत परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करता है. My God, my Father is not a poor. मेरा परमेश्वर मेरा पिता वो गरीब नहीं. So I start experiencing miracle. I start experiencing wonderful work of God in my life. तो मेरे जीवन में परमेश्वर का जो महान काम है उसके जो चमत्कार है उसका अनुभव लेना मैं शुरू करता I हूँ. start experiencing divine provision in my life. और मेरे जीवन में दैवी पुरोठा का अनुभव मैं लेना शुरू करता हूँ. I experience divine protection. और दैवी सुरक्षा का अनुभव मैं लेता हूँ. Whenever I go out and come in, I experience God's protection. जब मैं बाहर जाकर अंदर आता हूँ तो परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव मैं लेता And हूँ. I know there is no accident in my life. और मैं जानता हूँ मेरे जीवन में कोई अपघात नहीं है. So I keep on trusting word of God. I start practicing, and then I start experiencing word of God reality in my life. और परमेश्वर के वचन का सराव करते करते मेरे जीवन में उसका जो सच है उसका अनुभव लेना मैं शुरू करता So हूँ. I encourage you start practicing word of God. तो मैं आपको उत्तेजन देता हूँ कि परमेश्वर के वचन का सराव करना शुरू करें. Because when you start practicing, you must also experience what you are practicing. तो जब उस चीज का सराव आप करते हैं तो आपको अनुभव भी लेना है कि आप क्या सीख रहे हो, किस चीज का पर आप कार्य कर रहे हैं. Then third point, we learn how we can give word of God a priority in our life. तो तीसरी चीज जो हमने सीखी कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पहला स्थान दे सकते हैं. Many people are given a secondary place to word of God in your life. और बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दूसरा स्थान दिया हुआ है. That the secondary has become primary and primary has become a secondary. तो वो चीजें जो दूसरे स्थान पे होनी चाहिए थी वो पहले स्थान पे, और पहले स्थान वाली चीज को आपने पीछे छोड़ दिया. And that's how we can see a confusion and problem in the families. और इसकी वजह से परिवारों के बीच हम उलझन देखते हैं और समस्याएं देखते हैं. You know, today many families are going through problems. और आज बहुत से परिवार जो है वो संकट से गुजर रहे हैं. Because they have given a secondary thing in their life a primary place. क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में जो दूसरे स्थान पे जो जगह है उसे पहले स्थान पे लाकर रख दिया For है. some people, career have become a primary thing. कुछ लोगों के लिए उनका जो व्यवसाय है वो उनके लिए पहली चीज हो गई For है. some people, their boss has become a priority. कुछ लोगों के लिए उनका जो बॉस है वो उनका
पहले स्थान पर आ गए And हैं God has become a secondary thing. और परमेश्वर जो है वो दूसरे स्थान पे आ गए हैं। I want to encourage you, never give a God a secondary place. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी परमेश्वर को दूसरा स्थान हमारे जीवन में God wants you to be a priority in your life. परमेश्वर आपके जीवन में वो पहली जगह चाहते हैं। So through Word of God, we give a first place to Word of God in our life. तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उसे हमारे जीवन में पहली जगह देनी है। You know, David understood how important to give first place to Word of God in his life. और दाऊद ने ये समझा था कि कैसे परमेश्वर के वचन को पहली जगह उसे अपने जीवन में He देनी है। always understood Word of God is the first priority in my life. और उन्होंने हमेशा समझा था कि परमेश्वर का वचन को पहली जगह देना जीवन में कितना ज्यादा We जरूरी है। studied from Psalm 101. और भजन संहिता 101 में से हम सीखते हैं। He made a determination, he made a resolution. उसने वहाँ पर ये धैर्य लिया था और उसने एक वहाँ पर उद्देश्य लिया हुआ था। He said, I will give a priority to Word of God in my life. और उसने ये कहा था कि मेरे जीवन में परमेश्वर को मैं पहली जगह दूंगा ही। He said, as a king, I want King of King, a Lord of Lord, a priority in my life. और उसने कहा कि जैसे मैं राजा हूँ तो वो राजाओं के राजा प्रभु को मेरे जीवन में मैं वो पहली जगह दूंगा। He said, I will live my life pure and holy in the sight of God. उसने ये निर्णय लिया था कि परमेश्वर की नजरों में मेरा जीवन में शुद्ध और पवित्र जीऊंगा। Many of you are giving priority to other things instead of giving priority to God in your life. और बहुत सारे हम में से लोग हैं जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के बजाय हमने दूसरी चीजों को पहली जगह And दी then है। you are experiencing problem in your life. इसकी वजह से आपके जीवन में आपको समस्या का सामना करना You पड़ता है। are facing marital problem. आप वैवाहिक जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं। You are finding confusion in everything you do. आप जो भी चीजें करते हैं उसमें आपको उलझन ही मिलती है। There is a confusion between parents and children. माता पिता और बच्चों के बीच में उलझन है। There is a financial wants in your life. आपके जीवन में आर्थिक जरूरतें हैं। You are confused and your heart is gripped with the fear. आपका दिल उलझन में है और आपके दिल में वहाँ पर भय निर्माण हुआ And है। then Satan wants to torment you with all problems in your life. और शैतान वहाँ पर कोशिश करता है कि हर एक समस्या से वो आपको छल करे। Even though when the coronavirus is going all over the world, even the people of God, they are scared. और जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला है तो परमेश्वर के लोग भी वहाँ पर डर गए हैं। I want to tell you, my God will never fail you. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं Give a करेगा। first priority to God in your life. परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान दीजिए। When you give a first priority to Word of God and God in your life, you will see God will never fail you. और जिस तरह से आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दोगे तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपको निराश कभी My नहीं God has करेगा। never failed me. मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी निराश नहीं I am किया। in the ministry from last 40 years. पिछले 40 सालों से मैं परमेश्वर की सेवा God has कर not रही हूँ। never failed me. परमेश्वर ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। Always God has brought me out of problem and He restored my life. हर दम परमेश्वर ने मुझे उस समस्या से बाहर ला के मेरे जीवन का पुनर्स्थापना की है। He has given me more strength and courage to face any situation. और उन्होंने मुझे और ताकत और धैर्य दिया है कि किसी भी चीज का मैं सामना करूं। So we studied David made a resolution about his life. He said, I will live a pure life. तो हमने ये सीखा था कि किस तरह से दाऊद ने अपने जीवन का निर्णय लिया था कि वो एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएगा। Second thing, he said, I will make a resolution concerning my integrity about my work. और उसने ये भी निर्णय लिया था कि मेरा जो कार्य है, जो कार्य मैं करता हूँ, वो पूरे धैर्य के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं And करूँगा। that's why, because you are so faithful towards the job that God had given. और इसलिए जो कार्य परमेश्वर ने आपको दिया उसके प्रति आपकी निष्ठा पूरी होनी चाहिए और आप विश्वसनीय होने चाहिए। That's why Word of God says that David was a man after God's own heart. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर के काफी ज्यादा करीब थे। So if you want to be a man, a woman of God's own heart, let us give priority to God and His Word. तो अगर आप परमेश्वर की वो स्त्री और पुरुष होना चाहते हैं जो उसके दिल के काफी करीब है तो उसके वचन को पहला स्थान देना So we सीखें। must allow the Spirit of God in our life to make us understand what is the priority in our life. तो हमें परमेश्वर की आत्मा को मौका देना चाहिए कि वो हमें इस तरह से वो सिखाए कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दे पाए। So we studied, it's very important that we must give a priority to the Word of God in our life. तो हमने ये सीखा कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे सकते When हैं। we have a Word of God, a priority in our life, the Spirit of God start working in our life. तो जिस तरह से परमेश्वर के वचन को हम पहला स्थान देते हैं हमारे जीवन में तो उसका आत्मा कार्य करना शुरू करता है। Then we studied about the fruit of the Spirit. उसके बाद हमने परमेश्वर की जो आत्मा के फल है उसके बारे में सीखा। Because when we start practicing Word of God is routine in our life, and Word of God start producing fruits in our life. तो जिस तरह से परमेश्वर के वचन का हम सराव करना शुरू करते हैं तो उसका वचन जो है हमारे जीवन में वो आत्मा के फल
पैदा करना शुरू करता है। So as we read in Galatians chapter 5 verse 16 to 21, इसी तरह हम गलीतियों का 5वां अध्याय 16 से 21 जब वचन पढ़ते हैं, then we start walking in spirit. तो हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। When we walk in the spirit, then we will not fulfill the lust of flesh. जब हम आत्मा में चलते हैं तो दैहिक जो मोह है उसके हिसाब से हम नहीं कार्य करते। Because if we walk in flesh, then we start producing the fruit of flesh. तो जब हम उस देह में चलना शुरू करते हैं तो उस देह के फल जो है उसमें हम कार्य करना शुरू करते हैं। So when we give priority to word of God, we can see the fruits are start producing, we become fruitful. तो जब परमेश्वर के उस वचन को हम पहला स्थान देते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो आत्मा के फल है किस तरह से वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं। So we must understand we should not produce a fruit of flesh, but if we are led by spirit, we are giving priority to word of God, people can see fruit of the spirit in our life. तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस देह के फलों में हमें नहीं चलना, परंतु जब उसका वचन उसका आत्मा कार्य करता है तो लोग हमारे जीवन में वो आत्मा के फल देखेंगे। So we studied about of fruit of the flesh. तो हमने ये सीखा वो क्या होते हैं। That means the works of flesh can be manifested in our lives. तो इसका मतलब ये जो देह के जो फल है वो हमारे जीवन में किस तरह से कार्य करना So शुरू we करते can हैं। see the works of flesh: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murders, drunkenness, revelings, and such like this, of the which I tell you before, as I have also told you in the past, they which do such a thing shall not inherit the kingdom of God. As we read in Galatians chapter 5 verse 16 to 21. और जिस तरह से गलीतियों का 5वां अध्याय 16 से 21 का वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहला कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। So we know for sure if we walk by flesh, then we will start producing works of flesh. तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर इन आत्मा के फलों के हिसाब से अगर हम चलना शुरू करें तो हम आत्मा के ये शरीर के ही फल पैदा करते रहेंगे। So we must understand we need to be led by spirit. When we are priority to word of God, we will be a fruitful and blessing to others. तो जब हम ये आत्मा के फल के द्वारा चलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं तो उसका आत्मा हमारे जीवन में वो आत्मा के फल निर्माण करता है जिसमें हम चलना शुरू करते हैं। So I want all of you, let us be fruitful so people can be blessed through our lives. तो मैं चाहता हूँ हमें से हर एक व्यक्ति फलदायी हो कि हमारे जीवन के द्वारा लोग आशीषित हो जाए। That we are not becoming puppet in the hands of Satan, but we become a channel of blessing in the hands of the Spirit of God. तो हम शैतान के हाथों में उस कठपुतली के जैसे ना बने, तो परमेश्वर के हाथों में हमारा इस्तेमाल अच्छा हो, एक योग्य हम बर्तन बन पाए। So we are educating our spirit that we start producing fruit of the Spirit. तो अपने आत्मा को वहाँ पर प्रशिक्षित हम करेंगे कि हमारा आत्मा के फल निर्माण करना शुरू करेगा। As we read in Galatians chapter 5 verse 22 onwards. और जैसे गलतियों का 5वां अध्याय 22 वचन के आगे हम देखते हैं, That we can see there the fruit of the Spirit. जहाँ पर हम आत्मा के फल देखते हैं। Word of God tells us fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. और गलतियों का 5वां अध्याय 22वां वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों में विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। We have crucified our flesh and affection on the cross with Christ. और यीशु मसीह के साथ जो हमारे शरीर का जो आकर्षण है उसे हमने वहाँ पर क्रूस पर चढ़ाया है। That we are
crucified our lust and our lust and flesh and affection on the cross. और जो वो वासना है, वो जो लालसा है, वो जो आकर्षण है, वो सारी चीजों को हमने क्रूस पर चढ़ाया And है। so we can say like Paul, not I live but Christ lives in me. और पौलुस की तरह हम कहते हैं कि मैं नहीं परंतु मुझ में मसीह जीता है। Every day we are aware of God's holy presence in our lives. प्रतिदिन हम परमेश्वर का जो पवित्र उपस्थिति हमारे जीवन में है उसका हमें पता है। That I need to walk in spirit so I can produce a fruit of spirit in my life. कि मुझे उस आत्मा में चलना है ताकि आत्मा के फल मुझे निर्माण करने हैं। So I walk in love. तो मैं प्यार में चलता हूँ। You know, the people can see that I'm full of love. लोग भी ये देखेंगे कि मैं पूरा प्यार से भरा हुआ हूँ। That people can start experiencing love through my actions and through my feelings. तो लोग मेरे कृति के द्वारा, जो मेरी भावनाओं के द्वारा वहाँ पर प्यार का महसूस करेंगे। I walk in a full of love of God. और मैं परमेश्वर के प्यार में भर कर वहाँ पर चलता हूँ। If I have a love of God in my life, then I cannot have a hatred in my life. तो अगर परमेश्वर का प्यार मेरे जीवन में है तो मुझ में नफरत नहीं होगी। That I will overcome every hatred that comes in my mind. तो मेरे जो मन में जो नफरत है उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। Because I need to understand that Spirit of God is there, and I need to be aware that I need to walk in spirit of love, so people can see the fruit of love in my life. तो मुझे इस बात का एहसास है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो प्यार है उसमें मुझे चलना है। That I can walk in love. कि मैं प्यार में चलते रहूं। I start learning to overcome hatred in my life. और मैं ये सीखूंगा कि किस तरह से नफरत के ऊपर मुझे मेरे जीवन में विजय प्राप्त करना Then है। I start walking in joy. और मैं आनंद में चलना शुरू करूंगा। So joy of the Lord is my strength. तो परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत होगा। You know, bitterness, hatred brings sicknesses, weaknesses in our life. और घृणा, नफरत हमारे जीवन में बीमारी और कमजोरी लेके आते You हैं। know, worry also brings weaknesses in our life. और चिंता भी हमारे जीवन में कमजोरी लाता For है। little things we start worrying. छोटी छोटी चीजों के लिए हम चिंता करना शुरू We worried करते हैं। about our future. हमारे भविष्य के लिए हम We worried about our husband, wife, our children for their future. हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता में हम लगते And हैं। then we lose our joy in our life. इसलिए हमारे जीवन में वो जो परमेश्वर का आनंद है उसे हम खो देते So हैं। because we have given the first place to Word of God in our life, we can say joy of the Lord is my strength. क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हमने पहला स्थान दिया है, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। I have no fear in my life. मेरे जीवन में कोई भय नहीं है। Bible tells us let the weak say I'm strong. परमेश्वर का शास्त्र कहता है जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ। So I want you to confess your mouth that I'm strong. तो मैं चाहता हूँ कि अपने मुख से आप ये कबूल करें कि मैं बलवान हूँ। Say loud, I'm strong. आप जोर से है कि मैं बलवान हूँ। Never says I'm going to die with a heart attack. कभी ना कहे कि इस दिल की बीमारी से मैं मरने वाला You हूँ। must say I'm strong, my heart is strong. आपको ये कहना है कि मैं बलवान हूँ, मेरा दिल, मेरा हृदय भी बलवान The है। joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। I walk in strength. मैं ताकत में चलता हूँ। You need to confess Word of God in your life because joy of the Lord is your strength. आपको परमेश्वर का वचन कबूल करना है क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही आपकी ताकत है। You are not confused, you are full of peace. आप उलझन में नहीं है परंतु आप पूरी शांति से भरे हुए हैं। Even people are for everything, for little thing they are worrying and they are lost peace. और जो लोग हैं वो छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हैं और चिंता करने की वजह से अपनी शांति उन्होंने खो दी You है। can look on their face, they are so much worrisome. आप उनके चेहरे की ओर देख सकते हैं कि उनका चेहरा कितना चिंता से भरा हुआ I'm है। never worried because my God holds my future. और मैं कभी चिंता नहीं करता क्योंकि परमेश्वर के हाथों में मेरा भविष्य I will है। say my future of me and my family and my children are secure in the hands of Jesus. और मैं ये कहता हूँ कि मेरे परिवार का जीवन जो है परमेश्वर के हाथों में, जो उनका भविष्य सुरक्षित है Because I have peace of Jesus. क्योंकि यीशु मसीह की शांति मेरे जीवन में है। Jesus said, peace that I give it to you, that world cannot give you. कि यीशु मसीह कहते हैं कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ ये दुनिया नहीं दे सकती। So I'm confident about my future. इसलिए मेरे भविष्य के बारे में मुझे पूरा एहसास है। I'm not worried about the sicknesses and worries that going on all over the world. और ये जो दुनिया भर में ये जो बीमारी फैली हुई है उसकी चिंता मैं नहीं I करता। trust Word of God. परमेश्वर के वचन पे मेरा विश्वास है Bible is God's promises. और परमेश्वर का शास्त्र है उसके जो वादों से वो भरा हुआ है। God is faithful to keep all His promises. और परमेश्वर विश्वसनीय है कि वो अपने
सारे वादों को पूरा So करता I है। keep word of God a priority in my life. इसलिए परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में प्रथम स्थान देता हूँ। I say, Jesus, you have given me peace. मैं कहता हूँ यीशु मसीह तूने मुझे शांति दी है। I'm not confused. मैं उलझन में नहीं I'm not scared. मैं डरा हुआ नहीं But हूँ, I know my future is better. पर मुझे यकीन है मेरा भविष्य अच्छा है। So I have a peace in my heart, and that is can be seen by my activity. और मेरे जीवन में परमेश्वर की शांति है और मैं जो कृति करता हूँ उसके द्वारा वो लोगों को दिखती है। When the problems arises, I am never disturbed. जब समस्या आती है तो मैं डर नहीं जाता। I have peace. God is in control. मुझ में ये शांति है कि हाँ परमेश्वर नियंत्रण में है। So I walk in long suffering. इसलिए मैं संयम में चलता हूँ That God gives me courage. I can control every emotions and my feelings. कि परमेश्वर मुझे वो धैर्य देता है कि जो भी मेरी भावनाएं हैं उसमें मैं नियंत्रण पा सकूं। So people can see the fruit of spirit in my life. तो लोगों को ये आत्मा के जो फल है मेरे जीवन में नजर आएंगे। So it's very important when we start learning to educate our spirit, giving priority in our life to the word of God, we can experience word of God actually work in our lives. तो जब परमेश्वर के वचन को हम प्रथम स्थान देते हैं, उसके वचन पे हम मनन करके उसे कार्य में लाते हैं, तो उसका जो कार्य है उसका अनुभव हमारे जीवन में हम लेना शुरू करते Then हैं। I enjoy love of God in my life. कि मेरे जीवन में परमेश्वर के आनंद का मैं अनुभव लेती I can walk in the fullness of joy. और मैं आनंद से भरा हुआ जीवन जीता हूँ I'm confident about everything. I am full of peace. और हर एक चीज के ऊपर मेरा यकीन है कि मैं शांति से भरा हूँ I'm a long suffering. और मुझ में संयम है Then I am a gentle. और मैं सौम्य हूँ। The Spirit of Lord helps me to overcome every irritation in my life. कि परमेश्वर का आत्मा मुझे मदद करता है कि मेरी जीवन में जितनी भी चिड़चिड़ाहट है उसके ऊपर मैं काबू पा I सकूं। know sometimes Satan can use anyone to irritate me, so I can lose my patience. और मैं जानता हूँ कि कई बार शैतान किसी भी का इस्तेमाल कर सकता है कि मेरे जीवन में वो चिड़चिड़ापन लेकर आए। So I need to be long suffering. इसलिए मुझे वहाँ पर संयम में चलना I है need to be gentle to my wife, to my children, to people around me. और मेरी पत्नी या फिर मेरे बच्चे या जो लोग मेरे आसपास है उनके साथ मुझे सौम्यता से बर्ताव करना I है। need to be filled with goodness, so goodness can flow through my life. और मुझे अच्छाई से भरा हुआ होना चाहिए, भलाई से भरा हुआ, कि वो मेरे जीवन से भलाई बहती रहे। Even in my dream, I cannot think anything to hurt anyone. मेरे सपने में भी मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता जो जिसके द्वारा किसी को ठेस पहुंचे। So I must allow the goodness of God to flow in my life. तो परमेश्वर की जो भलाई है मैं उसे मौका दूंगा कि मेरे जीवन में वो बहती रहे। Because people can look at us. By looking at our good works, they can see the goodness is flowing through our good works. तो लोग हमारी भलाई की और हमारे जीवन के कार्य पे ध्यान देंगे और उससे परमेश्वर की भलाई उनको उसके द्वारा नजर आएगी। In my life, in the ministry, we always have done good thing to others. और हमारे जीवन में परमेश्वर की सेवकाई में हमने हरदम लोगों के लिए अच्छे काम ही किए हैं। Even the people, those who hurt us, insulted us, worked against us, but still we have done good thing to them. और लोगों ने हमारे विरुद्ध में वो आए, हमारा अपमान किया, हमें बुरी चीजें सुनाई, परंतु फिर भी हमने उनके लिए अच्छा ही किया है। Because we will always produce what we have. क्योंकि हम हमेशा वही निर्माण करेंगे जो हमारे अंदर है। There is a story about one couple. एक जोड़ा जो है उनके बारे में एक कहानी है। They go to a place where they hire a house. वो एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक घर वो लेते हैं। And they start cleaning their house and they clean their garden and everything and they make their house very clean. और वो जो उनका घर साफ करते हैं, जो बरामदा है उसे साफ करते हैं, हर एक चीज वो साफ सफाई करते हैं। And then they go to sleep in the night. और फिर रात को वो जाकर सोने की कोशिश करते Next हैं। morning when they get up, they see their garden, their outside area is been made thrown with the dirt. और फिर जब सुबह उठकर वो देखते हैं तो जो बरामदा है जिसको उन्होंने साफ किया था वो पूरे कचरे से भरा हुआ है। So they remember this something has played a mischief. तो उनको ये समझ आता है कि किसी ने तो शायद वहाँ पर शरारत की है। But husband and wife, they know that we will never allow anything in our life that will hurt others. और वो जो पति पत्नी है वो ये समझ जाते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हमारे जीवन में जिसके द्वारा लोगों को वहाँ पर तकलीफ हो। They got up in the morning, they clean their verandas, they clean their garden, and then they threw that into dustbin. फिर उन्होंने वहाँ पर पति पत्नी जाकर उनका वरांदा जो था वो उसे साफ किया, फिर से हर एक कचरा हटाकर उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। So every day they used to do these things, and every day their neighbor used to throw
dirt and all garbage in their places. तो हर एक दिन वो जो पति पत्नी है इसी तरह से करते थे कि उनका कोई तो वरांदा गंदा कर देता था, परंतु हर एक दिन वो उसे साफ करते थे। And they were always good to themselves and good to others. और वो एक दूसरे के साथ और जो और लोग हैं उनके साथ भी वो अच्छी तरह से ही बर्ताव So one करते day they decided we'll do something strange. थे। और एक दिन उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ तो अलग करेंगे। So next day morning they cleaned their verandas, everything, and in the night they kept all good flowers and fruits in neighbor's garden. और एक दिन उन्होंने अपना वरांदा जो था वो अच्छी तरह से साफ किया उन्होंने, और उसी रात उन्होंने उनके जो पड़ोसी थे उनके वरांदे की वहां पर जाकर फल और फूल ऐसे उसकी सजावट की। So next day morning when the neighbors got up to throw their garbage into the neighbor's garden, they saw there's flowers and fruits on their doorstep. और जिस दिन अगली सुबह जब उनके पड़ोसी थे वो फिर से उठ गए कचरा डालने के लिए ये पति पत्नी के वरांदे में, तो उन्होंने उठकर देखा कि उनके दरवाजे पे फल और फूल उनकी पड़ोसियों ने रखे थे। They were surprised. और वो वहां पर आश्चर्यचकित And they हो गए। felt ashamed. और उनको वहां पर खुद की शर्म आई। And then they go to neighbor and say, we are sorry about it. और फिर वो इस पति पत्नी के पास आते हैं, वो पड़ोसियों कहते हैं कि हमने जो किया उसके लिए हम शर्मिंदा Good हैं। couple always said, what we have we are given to you and you are given to us what you have. तो वो जो अच्छे पति पत्नी थे उन्होंने ये ऐसा कहा कि जो हमारे पास था वो हमने आपको दिया और जो आपके पास था वो आप हमें देते So रहे। the spirit of fruit of the spirit is goodness will always encourage you to do good thing. What you have you'll do it to others. तो ये जो भलाई का आत्मा आपके अंदर है वो आपको हमेशा उत्तेजित करेगा अच्छा करने के लिए, और जो आपके अंदर है वही आप लोगों को दो। So you must understand what people will throw garbage, hatred, bitterness against you, but you always throw goodness, mercy, meekness, be patient with them and show what you have in your life. तो जो लोग हैं अगर उनके जीवन में कचरा है तो वो आपके जीवन में कचरा ही डालेंगे, परंतु परमेश्वर की आत्मा के जो फल आप में है, जो अच्छाई है, जो भलाई है परमेश्वर का, वही आप लोगों को देंगे। So you may be going to work and in a place of work, your colleagues are working against you, they are plotting against you, but you must understand what you have, you must give it to them, even though they will give what they have in their lives. और इसीलिए आपको ये समझना है जहाँ पर आप कार्य करते हैं, आप काम करते हैं, आपके सहकर्मी जो है शायद आपके विरुद्ध में चीजें करते होंगे, परंतु आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई है और भलाई के साथ ही आप उनके साथ बर्ताव So you are educating your spirit to do good what the Spirit of God tells you to do. तो आपकी आत्मा को आप प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो अच्छा करेगी, जो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में हो उसके द्वारा ही आप कार्य करें। So you are full of gentleness. तो आप सौम्यता से भरे हुए हैं। You have faith. You are full of faith. आपके अंदर विश्वास है, आप पूरे विश्वास से भरे हुए हैं। When you meet people, you always say, I have a good plan because my God has a great future for me. जब आप लोगों से मिलते हैं तो उन्हें कहें कि मुझ में एक योजना है कि क्योंकि परमेश्वर की मेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं। You are full of faith. God will never fail you. आप में पूरा विश्वास है कि आपका परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। For little things, people are scared. और छोटी-छोटी चीजों के लिए लोग डर जाते When हैं। the children are sick, जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं they are scared. What will happen to my children? तो वो वहाँ पर डर जाते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। You will never lose faith in God. You will say, my God has a plan. My God has got a great future for my children. My children will not die with sickness. और आप में ये विश्वास है परमेश्वर का कि परमेश्वर की मेरे बच्चों के लिए एक अच्छी योजना है और उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बीमारी में नहीं मरेंगे परंतु वो जीवित रहेंगे। Your faith, my God shall supply all my need. आपका ये विश्वास कि मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। So what you are educate your spirit, giving first priority to Spirit of God, Word of God in your life, and you are experiencing what the Word of God has written about. तो परमेश्वर की जो आत्मा है उसके आत्मा के फल आपके जीवन में है, तो जब उसके वचन को आप पहला स्थान देते हैं, आत्मा को पहला स्थान देते हैं, तो उसका अनुभव अपने जीवन में आप लेना शुरू करते हैं। You are enjoying meekness in your life. आपके जीवन में वो धीरज, वो सौम्यता का अनुभव आप लेना शुरू करते Meekness हैं। does not mean you are defeated. और नम्रता का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर हार गए हैं। When you are meek, you are overcoming every wickedness of enemy. तो जब आप नम्र है तो आप जो आपकी जो शत्रु की बुराई है उसके ऊपर आप हमेशा विजय पाते हैं। One of the principle of kingdom of God is
परमेश्वर के राज्य का एक बहुत सारे नियम में से एक उसका ये नियम है। The principle is that humble yourself in the sight of God and God will lift you up. और उसका ये बात ये कहती है कि परमेश्वर की नजरों में खुद को नम्र करे और वो आपको ऊंचा उठाएगा। So you can say, Lord, I know what happens in my life. You have not forgotten. It is not that you have not seen my problem. और आपके जीवन में जो भी बातें होती है तो आप परमेश्वर से ये कहे कि मुझे यकीन है कि तू मुझे भूला नहीं है, मेरे साथ जो गलत हुआ उन चीजों के तूने अनदेखा नहीं किया। My God is watching over me. मेरे परमेश्वर की नजरें मुझ पर है। So when I produce meekness in my life, God is lifting up. तो जब परमेश्वर की नम्रता मेरे जीवन में मैं निर्माण करते जाता हूँ तो परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाते हैं। So fruit of the Spirit in my life can be seen. I'm meek. I also have a spirit of temperance. तो परमेश्वर का एक जो आत्मा है नम्रता का, वो मुझे ये बताता है कि मैं नम्र हूँ और मेरे जीवन में संयम रखना, धीरज रखना मैं जानता हूँ। So I always control my anger. My anger, I know it can destroy my future. तो मेरा जो गुस्सा है उसे मैं संयम में रखता हूँ, संतुलन में रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुस्सा ही मेरे जीवन को नष्ट कर सकता So है। everything that comes on my way, that I am learning how to overcome, control my anger. तो मेरे जीवन में जो भी बातें आ रही है तो मुझे उससे ये पता चलता है कि किस तरह से मेरे गुस्से पे मुझे संयम रखना है। So when I give a first priority to Word of God in my life, I allow Spirit of God to work on my character, so I can have a Christ-like character in me. जब परमेश्वर के वचन को मैं पहला स्थान देता हूँ तो मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे चारित्र पे काम कर रहा है, मेरा चारित्र ही मुझे आगे बढ़ाता है। So I start working on my life. I start experiencing a work of Spirit in my life, and people can see the fruitfulness in my life. तो परमेश्वर का मैं कार्य करना चालू करता हूँ, उसका जो आत्मिक फल है मेरे जीवन पे कार्य करते हैं और लोग उसका जो फल है वो मेरे जीवन में देखेंगे। So I can overcome the works of flesh in my life. तो ये जो देह के कार्य है उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त करूँगा। God is working on my life. परमेश्वर मेरे जीवन पे कार्य God कर is रहा working है। on each one of us. परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर कार्य कर रहा God है। wants you to make you strong. परमेश्वर आपको बलवान बनाना चाहते हैं। Not a weak soldier like a chocolate soldier that we can take it and we can swallow it. और एक परमेश्वर आपको एक अच्छा योद्धा बनाना चाहता है, एक छोटा सा योद्धा नहीं जो कोई भी उठा के चॉकलेट के समान खा जाए। You know, God wants you to be a warrior. परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक योद्धा बने। That you are spiritually strong. You are trained your spirit. You are educated your spirit. So you are allowing Spirit of God to work in your life. कि आप वहाँ पर मजबूत बने, अपने आप को प्रशिक्षित करें, आपकी आत्मा को प्रशिक्षित करें कि परमेश्वर आपको एक योद्धा बनाए। So when your spirit is acquainted with the Spirit of God, you are always learn to listen to voice of God. तो जब आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो आप समझ जाते हैं कि परमेश्वर के आवाज को आप किस तरह से सुन पाए। And fourth point I want to press on this morning. और चौथी चीज जो इस सुबह मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, That is obeying the voice of your spirit. कि आपके आत्मा का जो आवाज है उसे आप सुनना है। That is also be called conscience. उसे हम कहते हैं कि अंतरात्मा, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर की आवाज जो है। So our conscience is alive. We can find out what a differentiate between right and wrong. तो हमारी अंतरात्मा जो है, हमारी अंदर की आवाज है जो हमें बताती है कभी-कभी कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। So when we start educating our spirit, through the Holy Spirit, our spirit has become more educated to understand whom to listen. तो जब हमारे आत्मा को हमें वहाँ पर प्रशिक्षित हम करना शुरू करते हैं तो हमारा आत्मा हमें ये बताता है कि हमें किसकी आवाज सुननी है। We need to be very careful about whose voices we are listening. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है कि किन लोगों की आवाजों को हम सुन रहे हैं। We must understand the spirit word is real. और हमें ये समझना है कि वो जो आत्मिक दुनिया जो है वो सच्चा है। In that spirit world, we can hear different spirits. तो वो जो आत्मिक दुनिया है वहाँ पर हम अलग-अलग आत्माओं का वाणी सुन सकते हैं। There is a spirit of God who speaks. परमेश्वर का आत्मा है जो बात करता है। There is an evil spirit that speaks. और वो जो बुरी आत्मा है, जो बुराई की आत्मा है, वो बातें करती है। There is people around, they speaks. और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बातें करते हैं। There is a spirit of tradition that speaks. और संस्कृति, लोगों की जो परंपरा है, संस्कृति है,
उनकी आवाजें हैं जो लोग बात करते You हैं। know, these are the spirit that speaks to our human mind. और ये वो सारी आत्मा है जो हमारा इंसान का जो हमारा मन है उनके साथ बातें करता है। So we need to prepare our spirit. We need to prepare our spirit to tune in a such a way that we'll be able to tune to Spirit of God. तो हमारी जो आत्मा है उसे हमें इस तरह से तैयार करना है कि परमेश्वर की आत्मा के साथ वो एक साथ हो जाए और उसके साथ जुड़ जाए। You know, many times we heard many voices, और बहुत सी बार हम बहुत सारी आवाजों को सुनते हैं and then we start making decisions. और उसके बाद हम निर्णय लेना शुरू करते हैं। Sometimes we make decisions upon what our tradition says. और कई बार जो हमारी परंपराएं जो परंपरा जो है उसकी हम आवाजें सुनना शुरू करते हैं। Sometimes we listen to our culture. हमारी जो रीति रिवाज है उसके बारे में हम आवाजें सुनते हैं। Sometimes we listen to the people what they are talking around us. और जो हमारे आसपास लोग बातें कर रहे हैं उसे हम सुनते हैं। Sometimes we listen to evil spirit. कई बार हम जो बुरी आत्माएं हैं उनका भी सुनते हैं। And we don't listen to Spirit of God. परंतु हम परमेश्वर की आत्मा की या वाणी नहीं। And then our spirit does not make right decisions. इसकी वजह से हमारा जो खुद की आत्मा है वो सही निर्णय नहीं लेती। So what I taught you that when you educate your spirit, you will be able to make a right decision through your conscience. इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जब अपने आत्मा को आप प्रशिक्षित करते हैं तो वो सही निर्णय लेने के लिए आपकी मदद करेगी। I want you to turn to Proverbs 20:20. और मैं चाहता हूँ कि नीति वचन का 20 और 20 आप देखें। Proverbs 20:20 says, और नीति वचन 20:20 कहता है, Whoso curseth father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. और नीति वचन 20वां अध्याय 20 वचन कहता है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। Speaks about lamp, speaks about our conscience, speaks about our spirit. और ये उस दिए के बारे में बात करता है, हमारी अंतर आत्मा के बारे में बात करता है। And then we can see Proverbs 20:27. और फिर नीति वचन का 20वां अध्याय 27वां वचन कहता है। Proverbs 20:27. नीति वचन का 20वां अध्याय और 27वां वचन। The spirit of man is a candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Verse 27. और नीति वचन का 20वां अध्याय 27वां वचन कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। So what I'm trying to tell you that you must understand now your spirits are alive. Spirit of our God, it dwells in you and you are aware of presence of God in your life. तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो आत्मा है वो जीवित है, परमेश्वर का आत्मा आप में निवास करता है और वो आपको ये सारी चीजें बताता है। So when you are alive, when you heard a lot of different voices, but you must listen to your own voice. तो आपका आत्मा जीवित है और इन सारी आवाजों को जब आपने सीखा है, परंतु आपको अपनी आत्मा की बात वहाँ पर सुननी है। When you have allowed Word of God a priority in your life, and you have also experienced the fruit of Spirit in your life, और जब परमेश्वर के वचन को आपने पहला स्थान दिया है, और वो जो आत्मा के फल है उसको अपने जीवन में जब उसका अनुभव आपने लिया है, so you have become more courageous. You have become strong to make right decisions. तो आप पूरे वहाँ से धैर्य से भर जाते हैं और वहाँ पर बलवान है एक सही निर्णय लेने के लिए। So you are sure about whatever decision I'm going to make it, I'm ready to face all consequences. तो आपको इस चीज का यकीन है कि अब ये निर्णय जो मैं ले रहा हूँ उसके बाद जो भी चीजें होंगी उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। You are confident, my God is with me. आपको ये पूरा यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। You are confident about God's promises. परमेश्वर के वादे जो है उसके बारे में आपको यकीन है। Your spirit is aligned with the Spirit of God. और आपका जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ गया So है। you are sure that you are going to make a decision that is right in the sight of God, is based on Word of God. और आपको ये यकीन है कि जो निर्णय आपने लिया है वो परमेश्वर की नजरों में सही है और वो उसके वचन के ऊपर निर्भय है। So you know the truth and truth shall set you free. तो वो सत्य आपको पता चलेगा, वो
सत्य आपको मुक्त करेगा। So your truth will stand with your spirit and make you strong that I'm going to have victory. तो ये जो सत्य है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा और आप को यकीन होगा कि आपको विजय प्राप्त होने So वाला है। you are sure about your confidence. My conscience is clear, so I make right decision. तो आपको ये पूरा यकीन है कि हाँ मेरा जो अंतर्मन है वो सही है और मैंने सही निर्णय लिया है। So you're not depend on culture. तो आप वो रीति रिवाजों के ऊपर निर्भय नहीं है। You are not depend on the voices of tradition. और वो जो परंपराएं हैं उनकी जो आवाज है उसके ऊपर आप निर्भय नहीं है। You are not worried what people are talking. और जो लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में आपको चिंता नहीं You है। are not worried what a Satan has said to you. और शैतान ने जो आपसे कहा उसकी चिंता आपको नहीं है। Some of you have heard Satan coming to you again and again. You are a great failure. और कई बार आपने सुना है शैतान लगातार आपके पास आकर कहता है कि तुम तो हारे हुए हो। He spoke to you about your married life. आपके वैवाहिक जीवन के बारे में उसने आपसे कहा Satan है। say you will not succeed in your married life. शैतान ने आपसे कहा कि तेरी वैवाहिक जीवन में तू सफल नहीं होगा। You many of you have heard about your position. You're going to lose your job. और बहुत से लोगों ने ऐसा सुना कि हाँ आप अपना जो आपका जो काम है वो आप खोने वाले हो। You are worried about children's future. आपके बच्चों के भविष्य की आपको चिंता है। But I want to tell you, listen to voice of God. Listen what your spirit is saying to you this morning. परंतु मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की वाणी आप सुने और आपका जो अंतर्मन आपसे कह रहा है उसके बारे में आप सुने। Already you have experienced the fruit of the spirit in your own life. और आपके जीवन में परमेश्वर की जो आत्मा के फल है उसका अनुभव आपने लिया हुआ The है। one of the fruit of spirit is faith. You have faith and you are with the faith in God. You are making right decisions. और आत्मा के फलों में से एक है विश्वास और विश्वास आप में है और उसके द्वारा आप सही निर्णय लोगे। You are making a decision आप एक निर्णय ले रहे हो because your decision is very important. क्योंकि आपका निर्णय लेना बहुत जरूरी है। The thought the Spirit of God has given to you. और वो जो एक ख्याल जो परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिया है The thought that you receive from the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो ख्याल आपके दिल में आया है Your thought becomes your dream. आपका जो ख्याल है वो आपका सपना बनता है। Let your dream become your actions. आपका सपना आपका कार्य बने। Your actions become your habit. आपका कार्य आपकी आदत बन जाए। Your habit becomes your character. और आपकी आदत आपका चारित्र बन So जाए। you are making that decision when you listen to your own spirit, you listen to your own conscience. What I'm doing right things for the glory of God. और आप एक निर्णय लोगे कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही है। आपका अंतर्मन की आप आवाज सुन के निर्णय लेते हो और फिर आप ये कहते हो कि मुझे यकीन है कि मैंने सही निर्णय Now लिया you है। are a warrior. अब आप एक योद्धा है। You are declared war against Satan. शैतान के खिलाफ आपने युद्ध पुकारा In है behalf of you, God challenges Satan. और आपके ओर से शैतान के खिलाफ परमेश्वर ने युद्ध पुकारा Like है। God challenged to Satan in behalf of Job. और जैसे परमेश्वर ने इयोब की ओर से शैतान के विरुद्ध युद्ध पुकारा And Job did not fail God. और इयोब परमेश्वर की नजरों में हारा God is नहीं। looking for a conqueror. God is looking for a warrior who will stand in all situations. Say, I'm going to fight my battle. और परमेश्वर ऐसे योद्धा ढूंढ रहे, ऐसे विजयी लोग ढूंढ रहे जो वहां पर खड़े रह के कहेंगे कि मेरा युद्ध मैं लड़ने को I तैयार want to हूं। challenge you in Jesus' name. परमेश्वर के नाम से मैं आपको आह्वान You देता need to हूँ। tell yourself, I'm a conqueror. आप अपने आप से कहें कि मैं विजयी हूँ। Because Bible tells us you are more than conqueror. क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि आप महाविजयी हैं। You are going to overcome every storms in your life. आपके जीवन के हर एक तूफान पे आप विजय Storms प्राप्त of करोगे। sicknesses. उस बीमारी के तूफान, Storms of financial crisis. आर्थिक समस्याएं, Storms of married life. वैवाहिक जीवन के वो जो मुश्किलें हैं, There's confusion in married life. और वैवाहिक जीवन में जो उलझने हैं, There's confusion between parents and children. और माता पिता बच्चों के बीच में जो उलझन है, Some of you are pressurized by situation and circumstances. और जो आपके आसपास की परिस्थिति है उसकी वजह से आप पे दबाव है। I want to tell you, God has not forgotten you. मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर आपको भूला नहीं God है। is watching over you. परमेश्वर की नजरें आप पर है। God is looking at you that I have given my spirit, I have given my word to my child, what my child is doing. और परमेश्वर ये देखते हैं कि मैंने अपना आत्मा मेरे बच्चे को दिया है, मेरा वचन उसे दिया है, मैं देखता हूँ कि अब वो क्या करता है। As we read in Ephesians chapter 6 about armor of God. और जैसे इफिसियों का 6वां अध्याय में वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो शस्त्र सामग्री है, I want you to put on the whole armor of God. मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की वो पूरी शस्त्र Look सामग्री at आप धारण yourself, करें। stand in the mirror, stand before mirror and say, then look at yourself that you are standing as a warrior to fight your battle. और जब आप उस आईने के सामने खड़े रहते हैं तो अपने आप को इस तरह से देखें कि आप एक योद्धा है और उसके समान आप खड़े रहते हैं। You have faith in God. परमेश्वर में आपका विश्वास Till है the last you are going to hold
on promises of God. और आखिर तक परमेश्वर के अभिवचनों को आप थामे I रहोगे। want to tell yourself that I will never give up. मैं चाहता हूँ आप अपने आप से कहें कि मैं कभी हार नहीं I will मानूंगा। never give up. मैं कभी हार नहीं I will मानूंगा। never give मैं up. कभी हार नहीं This मानूंगा। sickness will not kill me. ये बीमारी मुझे मार नहीं देगी। By His stripes I'm healed. वो बैठे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई मिली My है। heart is strong. मेरा दिल वहाँ पर मजबूत My है। stomach is blessed. मेरा पेट जो आशीषित I'm है। under the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह की लहू के नीचे I'm बैठा moving in हूँ। victory. मैं विजय में आगे बढ़ता हूँ। You must tell, I declare war against Satan on behalf of my family. और मैं आपको ये कहना है कि मेरे परिवार की ओर से मैं शैतान के विरुद्ध युद्ध पुकारता I will हूँ। not allow Satan to torment me and my children. मैं शैतान को मौका नहीं दूंगा कि मुझे या मेरे बच्चों को वहाँ पर वो उनका छल करे। I know my destination. मुझे पता है मेरा अंतिम स्थान I know क्या where है। I'm going. मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा Heaven is हूँ। my destination. स्वर्ग मेरा अंतिम स्थान है। Like a Paul in Romans chapter 8 verse 38 onwards, all situation I can overcome. और जैसे पौलुस रोमियो का 8 अध्याय और 38वें वचन के आगे कहता है कि हर एक चीज अच्छाई के लिए आगे होती है। No situation can separate me from love of God. और कोई भी परिस्थिति पर यीशु मसीह के प्यार से मुझे अलग नहीं कर So सकता। tell yourself, no one can separate me. तो ये अपने आप से कहे कि कोई मुझे अलग I'm नहीं करेगा। strong. मैं मजबूत हूँ। I'm healthy. मैं वहाँ पर चंगाई में चलता हूँ। I'm anointed. मैं अभिषेक्त हूँ। I'm a victorious. मैं विजयी हूँ। I'm moving from one victory to another victory. मैं एक विजय से दूसरी विजय की ओर Me and बढ़ता my हूँ। family we are moving in victory. मैं और मेरी परिवार विजय में आगे बढ़ते हैं। I cancel all curses from your life. आपके जीवन से हर एक श्राप हम रद्द I करते rebuke हैं। every spirit of defeat. हर एक जो हार का आत्मा है उसे हम रद्द करते I हैं। rebuke every spirit of discouragement. निराशा की आत्मा को हम दूर I हटाते rebuke हैं। every spirit of worries. चिंता की आत्मा को हम दूर In हटाते the हैं। name of Jesus. यीशु मसीह के I नाम want से to close your eyes. मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को I want बंद to put करें। your hand upon your heart. मैं चाहता हूँ अपने हाथ को अपने दिल पे रखें। Agree with my prayer, receive blessings of God. मेरी प्रार्थना से सहमत होकर परमेश्वर की आशीष स्वीकारें। Father God, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम with से this authority, आपके अधिकार के the द्वारा authority you have given unto me, जो अधिकार आपने मुझे दिया and है having faith in your word, और आपके वचन में जो विश्वास है I हमारा, cancel every plans of enemy from the people of God. परमेश्वर के लोगों के जीवन से शैतान के हर एक योजना को हम रद्द I करते हैं। declare the church of Jesus is a victorious church. हम कबूल करते हैं परमेश्वर की कलीसिया विजयी कलीसिया है। I declare by His stripes I'm healed. मैं कबूल करता हूँ उसे बैठे हुए कोड़ों के द्वारा मुझे चंगाई I मिली है speak these promises of God upon every life. और हर एक जीवन पे परमेश्वर की यह वचन मैं कबूल करता हूँ। Every sickness in the name of Jesus is gone. हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हुई है। The spirit of cancer is gone. कर्क रोग यीशु मसीह के नाम से दूर Spirit हुआ of है। diabetes is dead. और डायबिटीज का आत्मा मर चुका है। All the spirit of arthritis is dead. संधिवात का हर एक आत्मा मर चुका The है। spirit of coronavirus is dead. कोरोना वायरस का आत्मा मर चुका है। We speak healing. हम चंगाई कबूल We करते हैं। speak Jehovah Rapha is our Lord. हम कहते हैं यहोवा राफा हमारा प्रभु है। We speak Jehovah Jireh is our God. हम कबूल करते हैं यहोवा जायरे मेरा प्रभु है। He is our provider. वो हमारा पुरोठा है। We confess Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, God of peace is with us. हम ये कबूल करते हैं यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम जो शांति का परमेश्वर है। Yeshua, Jesus, God Almighty is with us. और यीशु प्रभु महान परमेश्वर हमारे Lord, साथ we है। thank you for your promises. धन्यवाद देते हैं प्रभु You आपके वादों already के fulfill लिए। your promise in the lives of people. और लोगों के जीवन में आपके अभिवचन आपने पूरी की We है। declare they are delivered from every oppression. हमें कबूल करते हैं हर एक परिस्थिति से उन्हें मुक्ति मिली We है receive it right now upon every life. और हर एक के जीवन पे हम वो स्वीकारते We हैं। declare your decree, your promises, victory upon everyone. आपके अभिवचनों की विजय हर एक के जीवन में हम कबूल करते In हैं। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Say louder, Amen. जोर से मिलकर आमीन कहेंगे। Amen. आमीन। You need to claim promises of God. परमेश्वर के वादों को आपको कबूल करना है। Educate your spirit. आपके आत्मा को आप प्रशिक्षित When करें। your spirit is educated, you will see victory after victory in your life. तो जब आपका आत्मा प्रशिक्षित है तो आपके जीवन में आप विजय और विजय देखोगे। As you have listened to voice of God जैसे परमेश्वर की वाणी आपने सुनी है and agreed with my prayer, और मेरी प्रार्थना के साथ आप सहमत start थे acting, start working that you could not work before. और उस तरह से कार्य करो और देखिए कि जो चीजें आप पहले नहीं कर पा रहे If you थे could
could not walk, you start walking. अगर आप चल नहीं पा रहे तो उठकर आप चलना शुरू करें। Start telling, I'm healed. आप अपने आप से कहें कि मैं चंगाई मुझे You are मिली already है। healed. You must keep on confessing, keep on talking, start practicing and start experiencing. आपको पहले ही चंगाई मिली है, परंतु आप उसका अनुभव लेना शुरू कर आपके जीवन में उसे कार्य में लाएं। You are a child of God. God is looking at you. आप परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर की नजरें आप पर है। Stand as a warrior. आप एक योद्धा की तरह खड़े रहे। Keep on trusting God. परमेश्वर पे विश्वास आप करते रहे। God has already blessed you in the times of crisis. और इस महामारी के समय में परमेश्वर ने पहले ही आपको आशीषित किया Also, है। don't forget to bring your tithe. It is not possible to bring in the God's treasury, but by faith you can transfer. To have faith that you are transferring into God's treasury, you can online transfer in our bank account. और आपकी जो दान और दशांश है, अगर आप यहाँ पर ला सकते हैं तो लेकर आए, और नहीं ला पा रहे हैं तो विश्वास के द्वारा उसे आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। Our prayers are with you. हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ We हैं। pray that God will bless you financially. हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आर्थिक रूप से आपको आशीषित करे। Let's pray and receive blessings of God. हम प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीष कबूल We करें। also bless those who all celebrate birthdays. और जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया उन्हें भी हम आशीषित We करेंगे। bless you that God will see that you enjoy this year. और हम ये प्रार्थना करेंगे कि आप देखें कि इस साल का आनंद आप ले पाए। We also pray for all the couple who are celebrating wedding anniversaries. और जो जोड़े जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाई उनके लिए भी हम प्रार्थना Our करेंगे। prayer is that you fall in love with one another day by day. और हम प्रार्थना करेंगे कि दिन प्रतिदिन आप एक दूसरे के प्यार में और God ज्यादा हो becomes जाएं। your priority and you will enjoy God's faithfulness in your life. परमेश्वर आपका जीवन में आपका पहला स्थान बन जाए और परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष Let's करे। pray, agree with my prayer and receive blessings of हम God. प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना से सहमत होकर उसकी आशीष कबूल Let's करेंगे। pray. आइए हम प्रार्थना Our करें। gracious Heavenly Father, one more time we are thankful to you for your word. स्वर्गीय पिता, हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। Lord, we receive your word in our heart. आपका वचन हमारे जीवन में हम कबूल करते Let हैं। this word go deep down in our hearts. ये वचन हमारे दिल की गहराई तक That पहुँचे we become a fruitful and faithful. कि हम वहाँ पर फलदायी बने और We विश्वसनीय start बने। practicing and acting upon and start experiencing your word in our life. और आपका वचन हम उस पे सराव करते रहेंगे और हमारे जीवन में उसे कार्य में लाएंगे। Lord, as we have heard your word, let your word go deep down in our hearts. और जैसे आपका वचन हमने सुना है तो आपका वचन हमारे दिल की गहराई तक With पहुंचे। your authority, I pronounce your blessing upon everyone. आपके अधिकार के द्वारा हर एक के ऊपर आपका आशीष हम कबूल Especially करते हैं। those who are celebrating birthdays, let this year be a year of victory. और खास करके जिन लोगों ने अपने जन्मदिन मनाया है तो ये साल उनके लिए आशीषमय We हो। pray for all those couple who are celebrating their wedding anniversaries. और जो जोड़े जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मनाया उनके लिए प्रार्थना करते Grant हैं। them good health, your promises fulfill in their lives. उन्हें अच्छी सेहत दे और आपके अभिवचन उनके जीवन में पूरे हो I जाए। bless everybody with authority. हर एक व्यक्ति को आपके अधिकार के द्वारा हम आशीषित करते In the हैं। name of Jesus, I confess good health. प्रभु यीशु मसीह के नाम से अच्छी सेहत हम कबूल In करते the हैं। name of Jesus, I confess financial prosperity. और यीशु मसीह के नाम से आर्थिक सामर्थ हम कबूल करते In the हैं। name of Jesus, I confess love, joy, and peace. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार, शांति, आनंद कबूल करते And I हैं। confess what your blessing, I confess in the name of Jesus. और हम ये कबूल करते हैं जो भी आशीष है हमने कबूल की है। I confess it shall come to pass. हम ये कबूल करते हैं कि वो सच होने वाली है। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोगों अगर मेरी प्रार्थना से आप सहमत हैं, say hallelujah wherever you are. आप जहाँ कहीं पर भी है आप हालेलुया कहें। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we receive your blessing upon everyone. और परमेश्वर आपके आशीष हर एक व्यक्ति पे हम कबूल करते Let हैं। them enjoy your blessings. हर एक व्यक्ति आपके आशीषों का आनंद ले पाए। People around them, let them see you are already blessed them. और जो लोग उनके आसपास है वो देखेंगे कि किस तरह से आपने उन्हें आशीषित Now, किया है। Father God, bless them and keep them. तो अभी पिता आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें बनाए And रखें। let your face shine upon every one of us. और आपका मुख हर एक व्यक्ति के ऊपर चमक। And bless all these things in Jesus' name. और इस सारी बातों को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Let everyone say Amen loudly together. तो हम सब मिलकर जोर से आमीन कहेंगे। Amen. God bless you. We are going to pray for you. We going to pray for our nation. We pray for our Prime Minister Narendra Modi. We pray for our Chief Minister Uddhawji Thackeray for God's blessing upon all our government officials. और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे इस देश के लिए, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते And we रहेंगे। believe in God's own time, God will bring us together one more time for the great celebration of God's faithfulness. और हमें यकीन है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार हम सभी को एक साथ लाएंगे उसका महा उत्सव मनाने के God लिए। bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।